Bearing the basalt flows, all be on your guard. Bearing the basalt flows, these volcanoes are the largest of all the volcanoes on Earth. The Hawaiian volcanoes are the most famous examples. These volcanoes are made up of mostly basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. Which of the following volcanoes is defined in the above passage? Ashik. सही सी होना चाहिए, मिड ओशन रिच वोल्केनोस। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये हवाइन वोल्केनोस की बात करें तो सी नहीं हो सकता। आई थिंक डी हो सकता है, कैल्डेरा। Pravesh. Mid oceanic. Oh my God. Now we have a great varied answers. Karuna, you are always allowed to speak up. सर Not डी a... या ई में से ही होगा। Okay. Prerna. The A, A sir. is the correct answer. A is Sealed the right volcano. field हवाई volcano. से इसमें लिखा हुआ था इसी ना, टाइप टाइप का। ऑफ लावा दैट इज वेरी फ्लूइड व्हेन इरप्टेड, Prerna, तो please read Prerna. Read up. Yes, sir. So the same statement, these volcanoes are mostly made up of basalt, a type of lava that is very fluid when erupted. For this reason, these volcanoes are not steep. With reference to ocean floor configuration, consider the following statements. Ocean trenches. Ocean trenches are a feature of convergent plate boundaries and are found in every ocean basin on the planet. Parvesh. False. Mid-oceanic ridges is characterized by a central rift system at the crust, a frictionated plateau and flank zone all along its length. Ashik. ट्रू हो सर। The abyssal plains are extensive plains that lie between continental origins and mid-oceanic ridges. Pravesh. सर तीनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट। सर आंचल? 2 और 3 करेक्ट होना चाहिए, पहला गलत होना चाहिए। वन भी करेक्ट, थर्ड सही है। पहला डाइवर्जेंट बाउंड्री है ना, तो हाँ, तो पहला गलत है। हाँ, पहला गलत है। 2 और 3 करेक्ट। पहला भी करेक्ट ही Nothing होना of the ocean. नहीं, हाँ? पहला गलत होगा। चाहिए। पहला कन्वर्जेंट ही होता है। ट्रेंचेस डाइवर्जेंट होता है सर। प्रेरणा It's okay. Props. सर, बता भाई। So all are correct. All are correct. Thank you. The mapping of the ocean floor and paleomagnetic studies of the rocks from oceanic regions revealed many facts. The rocks equidistant on either side of the crest of mid-oceanic ridges show remarkable similarities in terms of magnetic properties. Mansi. सर कहाँ पे है क्वेश्चन? आपको सबको अटेंटिव रहना है उसी टाइम एकदम जब मैं पढ़ रहा हूँ। थोड़ा ऊपर कर दो आप। रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द, हाँ ट्रू सर। Next statement. The continental rocks are much younger than the ocean crust rocks. Parvesh. ट्रू। सर The sediments on the ocean floor are unexpectedly very thin. Achal. यस, ट्रू हो सकता है। बोल दो सर। सर The mid-oceanic ridges have. हाँ Ashik. द सेकंड वाला सर, कॉन्टिनेंटल रॉक्स आर मच यंगर देन द ओशियन क्रस्ट रॉक, तो ये फॉल्स होना चाहिए सर, क्योंकि ओशियन Okay. क्रस्ट। ठीक है. The mid-oceanic ridges have deep-seated earthquake occurrences while in the deep trenches the quake foci have shallow depth. ट्रू। तो फॉल्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। प्रेरणा बताओ जल्दी सबको। Sir 2 and 4 are false. Second का वही opposite होएगा. And fourth वाले में certain. The deep trenches have deep-seated earthquake occurrences
while in the mid-oceanic ridge areas, the quake foci have shallow depths. पहले वाला part. With reference to the stages of landscapes formed due to running water. Okay, landscape formed due to running water. Waterfalls and rapids may exist in youth stage. Mansi, True, sir. in the middle stages, the streams cut their bed slower and lateral erosion of valley sides become severe. Ashik. तो इसमें lateral erosion of the valley से become severe. हाँ, True sir. Lateral erosion है ना इसमें तो. during the old age, there are few smaller contributaries with steep gradients. Pravesh. सर ये लग रहा है सर गलत हो सकता है, स्मॉलर क्यों होंगी, लार्जर हो जाएंगे ना ट्रिब्यूटरी ओल्ड स्टेज पे तो। और steep gradient लिखा हुआ है. हाँ तो वो वो सर नहीं होना चाहिए. हाँ थर्ड गलत होना चाहिए. 1 and 2 are correct sir according to me. Achal. Last statement. Sir, I don't know. मतलब doubt है मुझे. Okay. ठीक है प्रेरणा. सर बस थर्ड वाला रॉन्ग है. स्टीप नहीं हम्म. होएगा. जेंटल ग्रेडियंट्स और स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज. Okay. With reference to cyclones, the air circulates inward in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी और साउदर्न में क्लॉकवाइज चलेगी. औशिक. True sir. Extratropical cyclones occur in temperate zones and high latitude regions, though they are not to originate in tropics of Capricorn and Cancer. Parvesh. True. True. चलिए next. With reference to the स्टेटमेंट वही 2. सर सर. स्टेटमेंट 2 इज नॉट राइट. लास्ट वाले में पोलर रीजन्स आएगा. हाँ. नोन टू ओरिजिनेट इन द Tropic. पोलर हाँ. रीजन्स. हाँ वो origin, yes. With reference to types of क्योंकि सर mountains. इसमें लिखा हुआ है ना टेम्परेट रीजन एंड हाई लैटिट्यूड रीजन. तो हाई लैटिट्यूड तो फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में तो कैसे हो सकता है फिर. ये ओरिजिन. बिल्कुल. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए दे रखा हुआ है. हम्म. बिटवीन ट्रॉपिक्स. Cold mountains का एग्जाम्पल है द Appalachians. प्रवेश. वैसे मैं आपको बता दूं, True. ये हार्ड कोर ज्योग्राफी है. जनरल स्टडीज में जिस टाइप के ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं, दे कम अप्लाइड विद एन एलिमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इन इट. बट देन इतना पता होना चाहिए एनसीईआरटी लेवल पे है ये. सर ट्रू होगा हाँ सर. जी. पहला कोल्ड माउंटेन तो है. ब्लॉक माउंटेन्स, वस्ट माउंटेन. मानसी. सर ट्रू हो सकते हैं. वॉल्केनिक माउंटेन्स, मौना किया. ट्रू है सर. ट्रू है सर. हवाई में Okay, लोकेटेड है. माना किया. चलिए नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. दिव्या. जी सर. हाँ. सी. सर नहीं 82. सी सर. सी. मानसी. Yes, sir. हाँ जी सर. सी. इलाहाबाद है सर. Himalayas. With reference to Himalayas, the northernmost ranges of Himalayas is known as Inner Himalayas. Mansi. फॉल्स सर. हम्म. आउटर The हिमालय. outermost range of Himalayas is called Shivaliks. फॉल्स सर. फॉल्स सर. The Indus River marks the easternmost boundary of the Himalayas. द वेस्टर्न तुमने मोस्ट. false कर दिया यार, पहला भी false कर दिया, दूसरा भी false कर दिया. इसमें The नॉट Indus करेक्ट पूछना River. चाहिए इसका मतलब. हाँ. सेकंड वाला सही होगा सर. सबसे आउटर मोस्ट को शिवालिक ही तो बोलते हैं. वो ठीक. शिवालिक ट्रू होगा. बिल्कुल. सर अब और Indus तीनों River अगर marks सही है, तीनों गलत है, इसका हाँ. मतलब मैं 1 2 3 मार दूं. डी मार दूं. तीनों सही है. वो पूछ रहा है तीनों सही है क्या. सर तीसरा तो गलत होगा ना. इंडस रिवर वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री होगा हिमालयाज का.
तो तीसरा तो अच्छा, गलत है ही। तो 1 and 2 करेक्ट है मतलब। 1 and सर 2 करेक्ट। सर थर्ड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट थर्ड है। है, बता रहा हूँ कैसे करेक्ट होगा, क्योंकि सर वो हम्म हिमालय का डायरेक्शन जो दिया हुआ है ना, ओवरऑल इनर हाँ, हिमालय शुरू में है, हिमालय तो आउटर नीचे है, तो यहाँ से देखेंगे तो ईस्टवर्ड होगा ना उस तरफ। बिल्कुल। तो वन, देखो प्रेरणा। Sir, third is मुझे not correct. समझ नहीं आया थर्ड सेंटेंस का। Indus River की जगह ब्रह्मपुत्र marks the तो easternmost मतलब boundary नॉर्मल of the ईस्ट का बात कर, हाँ ठीक है। द पार्ट सर ऑफ एक हिमालय। चीज सर, हाँ 2 बोलो। मिनट। इनर हिमालय जो है कि मोस्ट सर, काराकोरम, जंस्कार, पीर पंजाल, शिवालिक, ग्रेट हिमालय, ये लाइन है। तो इनर एक बार बता दे तो। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर से शुरू होती है ना हिमालय की लाइन, काराकोरम, जंस्कार, पीर पंजाल, शिवालिक, ग्रेट हिमालय। तो इनर हिमालय कौन सा हुआ फिर? देखो, हिमालयस का जो डिवीजन है, हिमाचल, हिमाद्री, वो वाला क्लासिफिकेशन है वो। इनर हिमालयस अब मतलब तो इनर हिमालयाज वुड बी मोर क्लोजर टूवर्ड्स द नॉर्दर्न, मतलब चाइना के बॉर्डर के जो सबसे पास हाँ, रेंज है वो वो होगा। ऊपर वाला हाँ तो इसमें लिखा है the northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. हिमाद्री, हाँ ना, वही तो। द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, ये बढ़िया है, काली रिवर। मानसी, सतलुज एंड काली रिवर। काली रिवर क्या है मानसी? सर काली रिवर सर बताओ। नेपाल बॉर्डर के पास है। ये तो कौन सा आंसर इसमें क्या होगा? तो कौन सा है? कश्मीर एंड हिमाचल में नेपाल हिमालय पंजाब कुमार। तो इट कैन बी सतलुज और काली, तो सर आई विल गो विद नेपाल हिमालय से। एनीवन विद अ डिफरेंट आंसर? डी सर, कुमाऊं सर हिमालय। डी कुमाऊं मैं भी हिमालय। मैं भी कुमाऊं जा रहा हूँ। उत्तराखंड। हाँ। Okay. Yes, sir, D is the correct answer. We expected Mansi to be little more forthright. थोड़ा सा और पेशेंस होता तो शायद कुमाऊं पहुंच जाते। Which one of the following is the first stage for the evolution of the present atmosphere? First stage. Mansi. No, first stage for the evolution of the present atmosphere, cooling of the earth, or the loss of modern atmosphere, hot interior of the earth. So I would say cooling of the earth. मैं भी सी करूंगा, कूलिंग होगा Anyone with a तभी different? फिर। सर प्रेरणा। गर्म हो सकती है, गर्म होगी तभी तो ठंडी होगी शायद। नहीं, पहले ठंडी थी उसके बाद गर्म हुई है Sir, अकॉर्डिंग टू B मी। is the correct answer. The loss of primordial atmosphere. Total atmosphere. उसके बाद आई थिंक कूलिंग ऑफ द अर्थ होगी। कुछ और भी लिखा है प्रेरणा? The second stage is the hot interior of the earth contributed to the evolution of atmosphere. And finally, composition of the atmosphere modified by living world photosynthesis. El Salvador became the first country in the world to adopt Bitcoin as a legal tender. Karuna. करेक्ट है सर। Apart from United States, country with the highest crypto production and trading volumes are all developing nations. Achal. नो सर। हाँ प्रेरणा? The second one is correct. All statements are correct. इसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, सिस्टम चाहिए, इंडिया का भी नाम है। रेबीज डिजीज, इट इज अ जूनोटिक वायरल डिजीज हैविंग नो वैक्सीनेशन इवन फॉर प्रिवेंशन। मानसी। सो फॉल्स। इट इज प्रेजेंट इन ऑल कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका। प्रवेश। फोर्थ। Recently, Kerala became first state of India to be completely rabies free. Achal. ये नो सर इट्स वो। Achal. Oh, Ashik. सर थर्ड भी गलत है, फर्स्ट गलत है सर, सेकंड सही है, क्योंकि थर्ड और फर्स्ट गलत है। तो प्रवेश Prevent. एक्सेप्ट अंटार्कटिका हो सकता रेबीज है, हाँ सिर्फ डॉग के काटने से ही होता है ना, और किसी चीज से थोड़ी और भी होता से है होता है, रेबीज। बैट से तो भी होता होता है, है, काऊ से होता है, मंकी से बच्चे होता है, सबसे हो हनी सकता है। एनिमल्स के उससे। हाँ बट बैट से भी है, बाकी से भी। हो सकता है।
with reference to the recently discovered Nishar Ramla Homo type lineage. Achal, first statement. Achal, Parvesh, Sir, I don't think so. Parvesh, हो सकता है हो सकता है पहला स्टेटमेंट. Second statement, Mansi. It is believed that they have given rise to Neanderthals in Europe and their equivalents in Asia. So it can be true. So it can also be true. It was discovered by archaeologists at Nashar Ramla city in Saudi Arabia. सर ये 1 and 3 सर मेरे हिसाब से ट्रू है, सेकंड गलत है. मैं भी सर 1 and 3 में जाऊंगा. Okay. Yeah. Answer, Prerna. Sir, 1 and 2 are correct. Third is not correct. Israel आएगा सऊदी अरेबिया के साथ. चलो खैर कोई बात नहीं. Good learnings for all of you. Edible oil sector, very favorite subject of all of you. Very easy for all of you. India meets about 2/3 of its edible demand through imports. Achal. Yes, sir. The share of palm oil is more than 60% of country's total vegetable oil import. Ashik. True, sir. India imports palm oil mainly from Indonesia and Malaysia. Pravesh. ट्रू. With reference to Global Cyber Security Index, it is composite index created and analyzed and published by International Telecommunication Union. Achal. Estonia topped the chart followed by US, UK and Saudi Arabia. Divya. True, sir. India ranked 10th in Global Cyber Security Index. A jump from previous time. Pravesh. फॉल्स. क्यों? और नीचे क्या होगा इंडिया? सर ज्यादा बढ़ा होगा, कम नहीं हुआ होगा. तो बोल तो रहा है ये भी जंप हुआ है. देख लेते सर क्या आंसर है. देख Sir, लेते हैं. first and Sir, हाँ, बोलो first बोलो. and third are Fir- correct. Second one is wrong. US topped the start, followed by UK and Saudi Arabia. Estonia नहीं. इस्टोनिया का नाम भी सुना है किसी ने ढंग से? नॉन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड. परवेश. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. हाई रिस्क ओबेसिटी हो सकती है परवेश जी पहले स्टेटमेंट से. नॉन कंजप्शन ऑफ एनर्जी डेंस फूड. हाँ सर. हाँ. अच्छा, नॉन कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड से आप मोटे हो जाओगे? यानी सर, अगर आप fruits नहीं खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे? हाँ सर फिर कुछ और खाएंगे ना. तो फ्रूट्स खाएगा ना बे. सर यहाँ पे लिखा हो ना नॉन कंजप्शन ऑफ एनर्जी डेंस फूड, यानी एनर्जी डेंस फूड नहीं खा रहे हो, कुछ भी खाए जा रहे हो. सुअर है भाई, मतलब कुछ भी खाए जा रहे हो, कुछ मतलब कच्चा सर, मुर्गा खाए जा रहे हो. हाँ प्रवेश बोलिए. यहाँ लिखा हुआ है कि कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डेंस फूड, तब ये सही होता है. आप नहीं खा रहे हो हाँ. एनर्जी डेंस फूड, तो आप तो तो आप कैलोरी डेफिसिट खा रहे हो. खाना कैलोरी डेफिसिट खाना खा रहे हो आप सेब आप. खा रहे हो. हाँ, आप फ्रूट्स खा रहे हो, तेल बाकी मखाना सब. खा रहे हो, फॉक्सनट खा रहे हो. एनर्जी डेंस आप क्या हुआ? तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल. अब ये दिमाग चल गया ना, अभी क्या करें. सेडेंटरी लाइफस्टाइल परवेश इज ए रीजन और नॉट? सर नहीं. अच्छा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी कारण नहीं है ओबेसिटी बढ़ाने का? नहीं सर. तो क्या है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्या होता है? पता नहीं सर, आप बता दो. थक गया भाई तो. मानसी. Sir, second true है. और थर्ड? Lack of exercise and financial support. It can all. नहीं सर, ये गलत करूँ मैं. True. वैसे इस ट्रू going by the ट्रू options two लैक भी ऑफ correct सपोर्ट. होगा. ट्रू. हाँ ठीक है. चलिए हाँ नेक्स्ट. जी. हेल्थ केयर नहीं मिलेगा जेनेटिकली तो. मॉडिफाइड रबर प्लांट. वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग वाज डेवलप्ड इन जर्मनी. दिव्या. True, sir. सेकंड स्टेटमेंट आशिक. जीएम रबर प्लांट प्लांटेड नियर गुवाहाटी असम. ट्रू हो सकता है सर, एग्जैक्टली वर्ड लिखा है गुवाहाटी असम.
GM In सर गलत है, केरला Indian है। GM rubber can protect plant cell and can also survive in severe environmental conditions such as cold and drought. नहीं सर, ये नहीं होना चाहिए 1 and 2, प्रेरणा सर 1 and 3 क्योंकि सीवियर ड्राउट एंड कोल्ड लिख दे, ड्राउट में भी सर्वाइव। GM रबर जो होता है ट्रॉपिकल वो होता है, इतना एग्जैक्ट एक्सट्रीम नहीं हो सकता। प्रेरणा सर 2 and 3 are correct. फर्स्ट वाला रॉन्ग है, इसमें लिखा है असम got the world's first genetically modified rubber sapling which was developed by the Kerala based Rubber Research Institute of India. केरला में। मतलब केरला का माल से जर्मनी से, और जर्मनी में मान भी लिया। चलिए ठीक है, नेवर माइंड। मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन बाय WHO, मानसी। फर्स्ट स्टेटमेंट, countries that achieved at least 3 consecutive years of zero indigenous cases can apply for malaria free certification by WHO. So at least 0 indigenous cases. So sir, हाँ, I 3 think साल wrong हो गई है। तक क्यों रॉन्ग हो हो? सकता है, और हो सकता है चाहती सर, हो तुम? 3 साल के लिए अगर नहीं पता चला है तो साल तक वो जो डिक्लेयर नहीं हो हो सकता रहा तो फ्री का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता क्या? सर एक केस हुआ तो अरे यार बड़ा अजीब बात हो यार, वो कह रहा है 3 साल तक जीरो है तब जाके सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। एक हुआ तो कैन नहीं होगा अप्लाई, सर्टिफिकेट। कैन अप्लाई, चीफ कैन क्या हो अप्लाई सके, फॉर अगर 3 साल तक ऐसा नहीं है हाँ तो अप्लाई कर सकते हो आप मलेरिया Recently, फ्री सर्टिफिकेट के लिए। China and El कैन Salvador were अप्लाई declared malaria free. China and El Salvador were declared malaria free by WHO. दिव्या, false. मानसी, so it can be true. तो थर्ड वाला ट्रू है, इन WHO क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का मेजर total कंट्रीब्यूटर, तो 1 और 3 सही है। चलिए अब सेकंड वाला में सर डाउट है, तो प्रेरणा, प्रेरणा, सेकंड में चाइना तो है बट दूसरा नहीं पता। तब चाइना है तो So पक्का सही है फिर सेकंड वाला भी, गैल सर और पता है सर। प्रेरणा So all are correct. वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय दिव्या। International Energy. हाँ बोल बोल बोल। B sir. आंचल, Investment report. औशिक, Sir, ट्रू है सर, उसका हाँ। इंटरनेशनल एनर्जी। Faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicle FAME 2. It was formulated as part of National Electric Mobility Mission Plan 2020. करुणा, तो सही होना चाहिए। the scheme is under ambit of Ministry of Road Transport and Highways. मानसी, so false है ये। क्यों? The Ministry of Road Transportation Highways नहीं होगा सर, वो क्या तो होगा? रोड कंस्ट्रक्शन सर, इंडस्ट्रीज होना चाहिए। सर हम्म, मिनिस्ट्री हेवी इलेक्ट्रिक से, अच्छा। हेवी इंडस्ट्री कुछ। It is designed to heavy support the electrification of public and shared transport and help create charging infrastructure. आंचल, sir उसको voice. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। दिव्या, Yes sir. थर्ड, True sir. ट्रू, ट्रू, यस सर। प्रेरणा, Yes, so 1 and 3 are 2 और second वाले में Department of Heavy Industries. thank you very much. Great support and great motivation and also energy shown by all. I really appreciate. Can you stop the screen sharing, please? करुणा, तो क्या लर्न किया आपने, क्या करना की जरूरत है, कैसा लगा? तो इसमें एक तो चीज ये है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि वो क्या बोल रहा है। वो तो है ही। और जैसे हमें कोई चीज बिल्कुल नहीं पता है तो थोड़ा बहुत कनेक्शन करके हम आंसर ठीक कर सकते हैं। और क्या नहीं करना है? सो जल्दबाजी भी नहीं पढ़ना है, और अगर किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मतलब ऐसे ही उसको करेक्ट नहीं करना है। अच्छा, ऐसे ही 200% नहीं कर सकते। जी सर। प्रवेश, सर 50 में से 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं सर। बहुत ज्यादा है ये तो यार, वेरी हाँ सैड। जी। क्या जी। किया जाए? तो सर अभी तो मेरे पास ही सोल्यूशन है, क्या किया जाए, आपसे बात करूंगा सर। बिल्कुल, पहला सॉल्यूशन ये कि कैरी ऑन, बी कंसिस्टेंट, हैप्पी और
च्यवनप्राश, दूध लीजिए एक एक चम्मच सब लोग, ताकि थकान ना हो। थकना नहीं है, पेपर थकाता है। थकता है तो माइंड सबसे पहले थकता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। 5 क्वेश्चन आपके ऐसे थे प्रवेश, आप ठीक कर सकते थे। जी सर। बोलिए आप। सर अल्टीमेटली जो क्वेश्चन गलत हुआ है ना, वहां पे लड़ाई नहीं है। जो क्वेश्चन ठीक हो सकता था वहां पे लड़ाई है एग्जाम में। बिल्कुल, जो ठीक हो सकता था वो गलत नहीं होना चाहिए। गलत ये तो सर। होगा ही थोड़ा बहुत तो। बिल्कुल। तो गलत होने दो, गलत का टेंशन नहीं है, पर जो ठीक कर सकते हो। मानसी, क्या करना है तुम्हें? तो ये हिस्ट्री में थोड़ा सा वही वर्क करने की जरूरत है, वहां पे ज्यादा टेंशन देना है। बाकी ज्योग्राफी तो में आगे एक दो कभी आगे थे। फिर भी क्या बदनाम सर। हिस्ट्री। मतलब हाँ, क्वेश्चन आते बदनाम तो हो ही रहे हैं। ज्योग्राफी के आगे तो फिर भी बदनाम हिस्ट्री है। वही बात है, कुछ कर ले सनम, गोली हमें ही मारी जाएगी। नहीं तो सर, कविता ज्यादा सुन। मतलब वही ज्यादा एफर्ट्स वहीं चाहिए, ये ये सब तो है समझ ही में आ भाई। गया। है क्या? सर ज्यादा एफर्ट्स वहीं चाहिए, ये समझ में आ गया मेरे को हिस्ट्री में। की बात है। दिव्या। ये सर। हाँ सर क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और साथ साथ जैसे हो रहे तो उनमें जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उनको साथ साथ लर्न करते चलना है कि हाँ क्या चीजें और सीखनी। बिल्कुल। आंचल के नहीं भैया। यस सर। हाँ बोलिए। पर बस एक दो जगह जहाँ पे जो कंसेप्चुअल था, मतलब तो नहीं करंट आइडिया आ पाए, अफेयर्स तो तो वो तुम्हारा दोबारा एक ही गलत देखते नहीं हैं। होना चाहिए। करंट अफेयर्स बता रहा हूं मैं तुम्हें। हाँ जी। कब आया था भैया रबर प्लांट? जर्मनी ले गया उठा के, और बता तुम हाँ हाँ बोल रहे हो। सर जर्मनी बनाया गया ऐसा फर्स्ट जीएम क्रॉप। हाँ, जर्मनी में तो था ही। गलत है ना वो तो तो। गलत है वो। हम्म, तो जर्मनी है, डेवलप कंट्री है, फर्स्ट जीएम क्रॉप। लेकिन तो सर हर जर्मनी चीज फिट हो कैसे रहा था करेगा, जर्मनी सेंटेंस फॉर में सर। ऑटोमोबाइल, तो फिर तो भी ये लगाना सेकंड मिला चाहिए तो कैसे। सर बोल सकते, लेकिन थर्ड मतलब वैसे सही हो गया कि उसको ओके ड्रॉट में भी कर सकते हैं और फिर कोल्ड में भी कर सकते हैं, वो वो थोड़ा तो एक्सट्रीम। आता ही इसलिए ना। ठीक है। नहीं, किसी वो और उसके लिए को? आता है ना। ओके एनीवेज, सो गुड। आई थिंक इट वाज वेरी एग्जॉस्टिव एंड हैवी है। हैवी ड्यूटी होता है पेपर, अच्छा पेपर होता है। खासकर हर सब्जेक्ट की डिमांड डिफरेंट है। जैसे हमें जब ज्योग्राफी में हम आए तो अचानक से हमें टोन चेंज करनी पड़ी, अप्रोच ही चेंज हो गई, और फायर फाइटिंग का तरीका बदल गया। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम। एग्जाम में हर क्वेश्चन में ऐसा होता है, एक बड़ा लग रहा है, फिर एक छोटा हो रहा है, फिर एक बड़ा हो रहा है। थोड़ी देर बाद जैसे परवेश ने कहा भाई जो लगाना लगा लो, मुझे नहीं पता, तो वो वाला एटीट्यूड हमारा आ जाता है। तो उससे हमें थोड़ा बचना है। थोड़ा हमें कॉन्फिडेंट, इतना कुछ आप लोगों को आता है, बहुत कुछ आता है, एंड उसको लाइटली और कॉन्फिडेंटली लेके चलना है। लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना है, थोड़ा रिलैक्स होकर, और हल्का लेना है उसको। ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रवेश के भी बाकी आराम से ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही हैज टू जस्ट रिमेन काम एंड डू नॉट हैव टू ओवर रिएक्ट ऑन एनीथिंग। कोई दिक्कत ही नहीं है। हिज कॉन्सेप्ट्स आर ओके फाइन। वो सब ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हल्का चाहिए, वो हो जाएगा। और वो तो वी आर ऑब्वियसली गोइंग अलोंग विद इट। सो इसमें जो मॉडर्न इंडिया के स्टेटमेंट से करूँ ना, वो करके उनको पकड़ो, ठीक है। और फिर वो डॉग के साथ देखना है, बाकी हम देखना। तो प्रेरणा, तुम क्या कहोगी? तुम्हें कैसा लगा? ये क्या था? सर इट वाज रियली गुड एंड मतलब यही लर्निंग हो रही है कि जिस टाइम पढ़ रहे हैं ना, सपोज न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं जो भी, थोड़ा सा और अटेंशन, थोड़ा सा और सोचना साथ ही साथ। मतलब जैसे अपना एग्जांपल लो तो आई जनरली डीले द थिंग के बाद में आराम से ध्यान से पढ़ूंगी, तो वो एट द मोमेंट ही करना है प्रॉपरली, उससे बेटर ये है। मुझे पता ही नहीं था। आई नेवर नेवर न्यू दैट यू डू लाइक। सर इन कमाल सम केसेस, बट नाउ आई एम इम्प्रूविंग, यस सर। हो। ओके। क्योंकि कुछ चीजें समझ में नहीं आती ना एट द मोमेंट पढ़ते हैं तो, बट फिर कोशिश करनी है कि उनको भी वहीं पे ही समझा जाए, तो इससे बेटर हो जाए। Okay, wonderful, great, good job, good points. Thank you very much. And it was good. और अच्छी बात यह है कि हम सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, हम उसको वैसा नहीं, वी आर नॉट ब्रशिंग इट अंडर द कार्पेट, सो इट्स ओके। जो गलत है अगर आप साथ में नोट भी किया आपने, तो परमानेंटली ठीक हो गया वो हमेशा के लिए, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। So still it is appreciable, and we'll very soon get back with the next episode. Thank you very much. Keep watching
Ansarkari, Thank you, and sir. keep working smart and hard. Thank you. Thanks to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Pravesh, Karuna, Divya, Achal, and everybody else also. Thank you very much.